हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you need to log in with your Google ID, and once you have logged in, you will be moved to this page. And here you can see the current affairs section. Here is your all courses, my courses, doubt section, and your home section where we will be providing you with the current affairs quizzes and the PDFs if you have purchased our course. For the course, we offer multiple courses. The courses are very good and will be helpful to you based on your 1 year preparation or 2 year preparation. You can choose any of them. In the course, we provide you current affairs in both Hindi as well as English. In current affairs section, we provide you daily current affairs, weekly current affairs, as well as monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with not just the content, also will be giving you a 20 questions quiz daily so that you can assess your performance. Similarly, in weekly, we will be giving you on weekly basis a quiz of 50 questions which you can assess. Apart from that, we'll be giving you a combined PDF of the whole week that will be containing important current affairs of that weeks, and same for the monthly basis. Apart from this, we do topic wise current affairs, that is there are multiple topics such as apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs. So all these topics are covered by us on our YouTube channel where you can refer to those videos. And apart from this, we also cover the banking questions and banking exams. So the courses will be very helpful to you, they will be very beneficial to you. I suggest you to go and check our courses. And if you made up your mind to purchase the course, you can use the code Vikas10 and you will be getting an additional 10% discount on the purchase you make. So go now, check our courses because they are very helpful and will be very beneficial to you if you are preparing for the government exams. So friends, let's start with the important weekly affairs of the second week of January. This session will be very helpful. So let's start. First, we'll be covering some important one-liners. Then we'll be shifting to the MCQ part. All right. Let's start with national news. First is Assam government has signed an MOU with NDDB to set up a joint venture that will be worth 2000 crore rupees, and that is for the dairy development. This is important here to remember. किस लिए इंपॉर्टेंट है? डेयरी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है भूपेंद्र यादव जी ने 19th मीटिंग चेयर की ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1973 में आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में आया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेलेक्टेड TCS फॉर सेकेंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। किसको सेलेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने? TCS को। नेक्स्ट, ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया एज चाइल्ड मैरिज फ्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया निरामय इन असम। कहाँ पे लॉन्च किया गया? निरामय, ये असम में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। केवाडिया रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज KVIC ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। नेक्स्ट, कोची बिकेम इंडिया की वो पहले सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे होने के पहला इंडियन सिटी जहाँ पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? कोची। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप जिसको अर्बन फॉरेस्ट पार्क भी बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर ने एक MOU साइन किया दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ टू रिसीव $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड। नेक्स्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर गुलाबो डाइड एट वन विहार नेशनल पार्क। कहाँ पर? भोपाल में। क्या नाम है ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर का? गुलाबो। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की एक हाई लेवल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट PM सिक्योरिटी ब्रीच, और ये जो अभी पंजाब में जो इतनी बड़ी न्यूज़ थी, उनकी प्राइम मिनिस्टर को 5-10 मिनट वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा था, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि हेड की जाएगी इंदु मल्होत्रा के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन गुरुग्राम हरियाणा। हेली हब क्या हो गया? जैसे एयरपोर्ट एरोप्लेन्स के लिए, तो हेली हब किसके लिए? हेलीकॉप्टर्स के लिए। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे लॉन्च्ड अ मिशन अमानत टू हेल्प पैसेंजर्स ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स। इंपॉर्टेंट। 18th कचाई लेमन फेस्टिवल टू बिगिन कहाँ पर? मणिपुर में। इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड, ओडिशा सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन
India Skill 2021 national competition. The state that topped was Odisha. Moving to some international news now. Ali Khan Smilov appointed as the Kazakhstan's new prime minister. Henley Passport Index. According to the Henley Passport Index for the year 2022, the rank of India was 83rd and the countries that topped was Japan and Singapore. Chennai International Airport ranked 8th in the global list on-time performance. Alright, I repeat, Chennai International Airport ranked 8th in the global list for on-time performance. Daniel Ortega sworn in as the president of Nicaragua for fifth term. Power Grid signed a joint development agreement with Africa 50 to develop Africa's first triple P transmission project in Kenya. India announced financial assistance of 900 million US dollar to Sri Lanka to overcome the फॉरेक्स क्राइसिस. ठीक है. नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन रेजिग्नेशन. उर्जित पटेल इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. नवरंग सैनी इनको असाइन किया गया एडिशनल चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. IBBI के नए चेयरपर्सन या फिर एडिशनल चार्ज दिया गया उनको चेयरपर्सन का, किनको, नवरंग सैनी को. वीरेश कुमार भावरा इनको अज्यूम द चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस. वीरेश कुमार भावरा. पंजाब काफ़ी न्यूज़ में रहता है आजकल, तो पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है. पियरे ओलिवर इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC में. राजकुमार राव अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाय. S सोमनाथ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, और ये 10th चेयरमैन बने हैं, ये भी याद रखना इसरो के. राघवेंद्र तनवर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. ऑलराइट. एंड शेर सिंह बी ख्याली अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ अडानी पावर. ऑलराइट. सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी स्लाइड में फिलहाल अभी है S सोमनाथ जी, जो कि नए चेयरमैन बने हैं इसरो के, जो कि 10th चेयरमैन है. और आपके K सिवान ये कौन से नंबर के चेयरमैन थे? ये 9th चेयरमैन थे. देन कुछ अवार्ड से रिलेटेड. केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन वन द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021. फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वन 2021 सिल्वर स्कॉच अवार्ड फॉर द गवर्नेंस एट 78th स्कॉच समिट. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 22 अनाउंस द पावर ऑफ द डॉग वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा. And Will Smith won the Best Actor in the Motion Picture. Alright, and Nicole Kidman won the Best Actress in the Motion Pictures, alright, drama category. Then if we talk about sports, भारत सुब्रमण्यम ये पहले बिकम 73rd चेस मास्टर ऑफ इंडिया. याद रखना कौन से चेस मास्टर बने हैं? 73rd. और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सबको पता है कौन थे. नाम बताना है आपको और आपको ईयर बताना है किस ईयर में वो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. नेक्स्ट पे आइए. नेक्स्ट हम बात करेंगे 2022 के एडलेडे इंटरनेशनल में, जिसमें फर्स्ट रैंक आई गेल मॉन्फिल की. इन्होंने मेन सिंगल कैटेगरी में जीता. एंड एशली बार्टी इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता. ऑलराइट. नेक्स्ट मेलबॉर्न समरसेट वन ट्रॉफी ऑफ 2022 वन बाय राफेल नाडाल इन मैन सिंगल कैटेगरी एंड सिमोना हेल्प इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता. नेक्स्ट आ जाते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए कौन बने? अजय पटेल. इंपॉर्टेंट. कर्नाटका विल होस्ट खेलो इंडिया गेम्स इन 2023. इंपॉर्टेंट. कर्नाटका होस्ट करेगा खेलो इंडिया गेम्स 2023 में. देन टाटा ग्रुप को IPL का स्पॉन्सर बना दिया गया है 2022 और 2023 के सीजन के लिए, जो कि पहले वीवो था. सविता पुनिया नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन वीमेन हॉकी टीम फॉर वीमेंस हॉकी एशिया कप, जो कि कब होने वाला है? 2022 में. ये भी याद रखना. और कहाँ पे होगा? लोकेशन इंडिया में. ठीक है. वीमेंस एशिया हॉकी कप 2022 के लिए जो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन बनी है वो है सविता पूनिया. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं आपको. 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करेंगे हर साल फ्रॉम 2022 में पहला एडिशन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस का. नेक्स्ट आ जाता है 9 जनवरी. एक चीज़ और, ये जो वीर बाल दिवस है ना, जो 10th सिख गुरु थे ना, उनके बच्चों के लिए मनाया जाता है ये. नेक्स्ट नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को. वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को. नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को.
नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और नेशनल यूथ डे की थीम क्या होती है, इट्स ऑल इन द माइंड। 14 जनवरी को इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग्ड इन द फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया किस कंट्री में। इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन कहाँ पे कराने की बात की जा रही है, फ्लैग्ड इन फ्रांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, ये आपको पता होना चाहिए। NIMAS के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया, कहाँ पर, इन फ्रांस में। NIMAS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ठीक है, चलो इसमें याद रखना जो एक्सपीडिशन है ना टीम का, वो कैरी आउट करेगा एक 250 किलोमीटर का विंटर ट्रैक्स, कहाँ पे, एल्प्स माउंटेन में की ट्रैकिंग करेंगे 250 किलोमीटर की, जो कि एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है आपका, फ्रांस में है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज सेट टू गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब। अभी हमने देखा था हेली हब कहाँ बनाने की बात की जा रही है, गुरुग्राम में। हेली हब किस लिए है, हेलीकॉप्टर्स के लिए। ठीक है, हेलीपैड कह सकते हैं इसको। काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं, एक हैंगर फैसिलिटी होगी वहाँ पे, उनकी जो भी दिक्कत होगी, सर्विस होगी, सब कुछ किया जाएगा। ऑलराइट, ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये हेली हब डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑफ 2020 अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर किस स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑफ 2020। कौन सी स्टेट बनी, वो बनी आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये अवार्ड अनाउंस किए गए थे किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था। और मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, और अभी हमने इसमें देखा टॉप पे रहा यूपी, यूपी के बाद आ जाता आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद आ जाता है तमिलनाडु नेक्स्ट स्टेट पे। फिर अगर मैं पूछ लूँ किस स्टेट ने अभी रिसेंटली, या किसको अभी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से घोषित किया गया नॉर्दर्न जोन में, नॉर्दर्न जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी, वो है मुजफ्फरनगर। और ये मुजफ्फरनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डैश आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन was recently awarded with the International Craft Award for 2021 by the World Craft Council International। तो कौन सी स्टेट की आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021। आपको याद रखना है केरला की आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज को, इसको KAVC भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको अभी अवार्ड किया गया फॉर द विद द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 के लिए। ठीक है, और इनको अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इनको सम्मानित करा गया। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करूं, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एफिलेट करती है किससे, यूनेस्को से। यूनेस्को के एफिलेशन में आती है ये। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट की बात करें तो साद हानी जी इनके प्रेसिडेंट है, और ये फाउंड कब की गई थी, 1964 में इसको फाउंड किया गया था, मतलब इस काउंसिल को बनाया गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन MOU विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB के साथ। पहला ही वन लाइनर देखा था हमने कि 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एक डेयरी जॉइंट वेंचर के लिए किस स्टेट ने टाइप किया NDDB के साथ, तो वो किया असम ने। ठीक है, असम ने टाइप किया, और किस लिए, डेयरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए किया। नेक्स्ट, विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल ऐप जिसको अर्बन फॉरेस्ट पार्क बोला गया, दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्बन पार्क्स एंड फॉरेस्ट एरियाज। अर्बन पार्क्स एंड फॉरेस्ट एरियाज के लिए एक किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च की एक पहली मोबाइल ऐप जिसको अर्बन फॉरेस्ट पार्क बोला गया। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, ताकि लोग वहाँ पर आएँ,
ठीक है, ये क्या है, ये एक थीम बेस्ड पार्क हो जाएंगे आपके। ठीक है, वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए कि लोग आए अपने घर से निकले, इवन इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक में भी हेल्पफुल होगा। इवन टूरिस्ट आएंगे तो वो एक ज़्यादा अच्छा, एक बेटर लगेगा स्टेट के लिए। ऑलराइट, तो वो है तेलंगाना। और अगर पूछा जाए कि ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो कि मोबाइल ऐप है, डेवलप किसके द्वारा की गई है, तो पैम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट में हीराकुंड डैम लोकेटेड है? किस स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा पे लोकेटेड है। अगर मैं पूछ लूँ किस रिवर पर लोकेटेड है हीराकुंड डैम, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस रिवर पे लोकेटेड है आपका हीराकुंड डैम? तो रिवर का नाम आ जाएगा महानदी, याद रखना। ठीक है, महानदी रिवर पर लोकेटेड रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ICAR का SBI ने, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की, इन्होंने कोलैब किया अन्नमलाई टाइगर रिजर्व के साथ। पूछा जा रहा है अन्नमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, और इन्होंने ICAR के साथ और अन्नमलाई टाइगर रिजर्व ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया जिसको नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल बोला गया, कि ट्राइबल पीपल के लिए नॉलेज देने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एक प्रो कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स। पूछा जा रहा है कि अन्नमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है अन्नमलाई टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि जो भी न्यूज़ में रहते हैं ना आपके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये यही इनडायरेक्टली आपसे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे, Which year was declared as the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture by United Nations General Assembly? UNGA ने किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिक्लेयर करा, ये पूछा गया है। तो 2022 को इसी ईयर को डिक्लेयर किया गया UNGA के द्वारा। ठीक है, और ये फिशरीज और एक्वाकल्चर की बात की जा रही है, तो जो स्मॉल स्केल फिशर हैं, फिशरमैन हैं, जो फार्मर्स होते हैं छोटे स्केल पे, ठीक है, उनको उनके बारे में बताने के लिए कि वो उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, उनको मतलब छोटे पूरे टाइम 3 टाइम का खाना खाने में भी कई बार दिक्कत होती है, तो उस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक लॉन्च किया गया, 2022 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट, इन जनवरी 2022 डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट सिटी विद अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट्स कॉल्ड मुजिरिस। पहली इलेक्ट्रिक बोट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मुजिरिस। और ये पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ऊपर वन लाइनर में हमने देखा था कि कोची में, कोची केरला में ये, या कोची इंडिया की पहली वो सिटी बनी जिसमें वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और इसमें जो इलेक्ट्रिक बोट्स यूज़ की जाएंगी उसका नाम रखा गया है मुजिरिस। ठीक है, ये 23 बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स रहेंगी जो कि कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई थी। कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड बोल लो, और इसकी बोट्स को वाटर मेट्रोस कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जो मुजरिस है इसको वाटर मेट्रोस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, RBI ने सेटअप किया एक न्यू फिनटेक। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक फिनटेक डिपार्टमेंट सेटअप किया टू फैसिलिटेट इनोवेशन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड फिनटेक डिपार्टमेंट। इस नए क्रिएटेड फिनटेक डिपार्टमेंट का हेड कौन है जो कि RBI के द्वारा डेवलप की गई है? तो जो हेड बने हैं क्या नाम रहेगा उनका? वो है आपके, बताओ, इजी क्वेश्चन। और ये हेड का नाम पूछा गया आपसे, कौन बने? अजय कुमार चौधरी जी हेड बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, अजय कुमार चौधरी हु वॉज रिसेंटली प्रोमोटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। अब उनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि एक फिनटेक डिपार्टमेंट है, जो क्या करेगा, आपकी जो इनोवेशन होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस पर ध्यान देगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? ये गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द बुक दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद गूगल
to improve its customer experience through Abacus 2.0. Abacus 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के को यूज़ करते हुए किस बैंक ने अभी कोलैब किया गूगल के साथ टू इम्प्रूव इस कस्टमर एक्सपीरियंस? कौन से बैंक ने टाइप किया गूगल के साथ, आपको ये पूछा गया। तो आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ टाइप किया ताकि एक नया प्रोग्राम अबैकस 2.0 लॉन्च किया जाए। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों का जो डिजिटल एक्सपीरियंस है ना, कस्टमर का एक्सपीरियंस होगा, उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB फॉर अ टर्म ऑफ 3 years? 3 साल के लिए AIIB के नए वाइस प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? अगर आपने ऊपर वन लाइनर ध्यान से पढ़े तो आप बता देंगे, उर्जित पटेल को बनाया गया नया वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये रिप्लेस किसको करेंगे या सक्सीड किसको करेंगे? डीजे पांडियन को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? उर्जित पटेल। और 3 साल के लिए बने हैं, ये भी याद रखना है। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2025 तक बने हैं। AIIB की बात करूं तो ये 2016 में बना था एंड इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट, डैश अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नए सेक्रेटरी जनरल किनको बनाया गया और कितने साल के लिए बनाया गया? तो हाइथम अल घैस जी को बनाया गया, 3 साल के लिए बनाया गया। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? आपको ये भी पता होना चाहिए, ये रिप्लेस करेंगे मोहम्मद बार किंडो को। ठीक है, मोहम्मद बार किंडो को, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। एंड हाइथम अल घैनिस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए, कुवैत से। ठीक है, ये कुवैत के हैं जो कि नए सेक्रेटरी जनरल बने ओपेक के, और जो पुराने हैं वो है मोहम्मद बारकिंडो, इनको नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट, डैश द विनर ऑफ द वर्गानी कप ओपन 2021 हेल्ड एट इटली वाइल भारत सुब्रमण्यम बिकेम इंडियाज डैश चेस ग्रैंड मास्टर इन द टूर्नामेंट। कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे? अभी हमने देखा 73rd बने थे। और याद रखना, एम आर ललित बाबू ये क्या है? विनर रहे वर्गानी कप के, जो कि इटली में हुआ था। और भारत सुब्रमण्यम ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए टूर्नामेंट के। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस। कब? हमने देखा था अभी 26 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट 26 दिसंबर था या 25 दिसंबर? 26 दिसंबर। और गुरु गोबिंद सिंह के सन हैं ये दोनों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन दोनों के ऑनर में ये सेलिब्रेट करने की बात की गई और ये 10th सिख गुरु हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिया कौन से नंबर का लार्जेस्ट होल्डर है? आपसे ये पूछा जा रहा है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है। पहला पे आ जाता है आपका चाइना, और दूसरे पे आ जाता है इंडिया इन द लार्जेस्ट टर्म ऑफ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ AIIB। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। हु ऑथर्ड द बुक वॉर माइनस द शूटिंग। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? माइक मार्केस के द्वारा ये बुक को ऑथर किया गया, वॉर माइनस द शूटिंग। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया मिनाक्सू पे के साथ टू ऑफर बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट्स? बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट्स को ऑफर करने के लिए किस बैंक ने टाइप किया मिनाक्सू पे के साथ? बताइए, किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने टाइप किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होल्ड डैश स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आपको पता है, वोडाफोन और आइडिया दोनों ने मिलकर अपनी एक सिंगल कंपनी बना ली थी। तो अब पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक रहेगा आपका इस वोडाफोन इंडिया में? तो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है ना, वो तो है 35.8%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप याद रखना आदित्य बिरला ग्रुप का भी इसमें स्टेक रहेगा, जो कि है 17.8%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 35.8% और 17.8% आ जाता है स्टेक आपका आदित्य बिरला ग्रुप का, किसमें? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट, क्रिस मॉरिस रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस मॉरिस
किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे जिन्होंने अभी सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया? तो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, ऑलराउंडर थे, ये भी याद रखना। फिर एक बुक आई थी इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वीमेंस नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये किन की ऑटोबायोग्राफी रहेगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये बुक, क्योंकि ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की लाइफ के ऊपर थी, या फिर उनकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। ये कौन है अरुंधति भट्टाचार्य? ये क्या थी? फॉर्मर इंडियन चेयरपर्सन ऑफ स्टेट इंडियन बैंक, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई रह चुकी हैं ये। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पहली एसबीआई की चेयरपर्सन थी जिनका जो टाइम पीरियड था ना वो एक्सटेंड कर दिया गया था आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट के बाद भी ये पहली वो वीमेन थी जिनका एक्सटेंशन मिला था इनको। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, और इनका बुक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, और ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट बैंक जिसने रिसीव किया एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई से टू सेटअप एंड ऑपरेट अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल और कमर्शियल बैंक को सेटअप करने के लिए रिसेंटली कौन सा बैंक पहला बैंक बना जिसने एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस रिसीव किया आरबीआई से? एसबीएम बैंक बना वो। ठीक है, पहला बैंक जिसने एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस रिसीव किया आरबीआई से। अगर इनकी बात करें एसबीएम बैंक की, सीईओ एंड एमडी सिद्धार्थ रथ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर जिसका नाम था गुलाबो, उनका भी डेथ हो गया वन विहार नेशनल पार्क में। वन विहार कहाँ पे लोकेटेड है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, वन विहार, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आ जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश से याद रखना, अगर मैं ग्वालियर की बात करूँ, ग्वालियर वो पहली सिटी थी जहाँ पे पहला ड्रोन मेला हुआ था इंडिया का। क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला ड्रोन मेला कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ग्वालियर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन गुजरात वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज द एकता नगर रेलवे स्टेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? केवाडिया रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया था एज एकता नगर रेलवे स्टेशन, मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड अलॉन्ग विद एनपीसीआई ऑन इट्स 79th इनॉग्रेशन डे? 79th इनॉग्रेशन डे पे किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया एनपीसीआई के साथ मिलके? रुपे ने मतलब किस बैंक ने रुपे के साथ मिलके एनपीसीआई की हेल्प से डैश बैंक ने क्या लॉन्च किया है? एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस बैंक का नाम पूछा आपसे, तो क्या नाम रहेगा? वो है आपका यूको बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या है कि अगर आप सर्टेन लिमिट की अगर आप सेल कर लेते हो, उसके बाद आपका जो लिमिट हो जाएगी ना बैंक की, 50,000 रुपये आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अभी क्या है 25 के एक टाइम की, वन डे की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया एडिशनल चार्ज ऑफ डैश एज चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया और कितने साल से एक्सटेंड कर दिया? देखो, नवरंग सैनी जो कि क्या है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई, अभी हमने ऊपर देखा था आईबीबीआई क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका टाइम पीरियड कितने टाइम से इंक्रीज कर दिया गया है? टेन्योर 3 महीने से इंक्रीज कर दिया गया है। हु ऑथर्ड द बुक रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? एन यहाँ पे नेवल, तो रतन नेवल टाटा जी की जो ऑथराइज्ड बायोग्राफी है वो किन के द्वारा लिखी गई है, ऑथर की गई है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा इसको ऑथर किया गया है। ये यूएस, यूके, ठीक है, और इंडिया तीनों जगह पे इसको लॉन्च किया जाएगा इस बुक को। एंड इंडिया में हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ये इंग्लिश में पब्लिश की जाएगी। ठीक है, थॉमस मैथ्यू ऑथर रहेंगे, याद रखना। Next, CDSL Ventures recently got approval from the SBI to set up an accreditation agency for dash term with effects from 1st of January 2022। कितने टर्म के लिए सेटअप करने की बात की गई? 3 साल के लिए। CDSL क्या होता है? सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ये एक होली ऑन्ड सब्सिडरी है CDSL की, जिन्होंने अप्रूवल मिला जिनको सेबी की तरफ से फॉर सेटिंग अप ऑफ अ एक्रीडेशन एजेंसी। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए इस्टेब्लिश करने के इनको अप्रूवल मिला है सेबी से। और सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अफ्रीका 50 के साथ टू कंटिन्यू टू डेवलप अफ्रीका का पहला ट्रिपल P ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन कीनिया। अफ्रीका पहला ट्रिपल P ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जाएगा केनिया में, एंड इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बाद ये पहला पावर प्रोजेक्ट होगा जो कि कीनिया के द्वारा होली ओन्ड होगा। मतलब कीनिया का जो खुद का पहला इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा ये कीनिया का, ठीक है। और ये क्या है, अफ्रीका 50। अफ्रीका की एक कंपनी है जो कि वहाँ के डेवलपमेंट में ध्यान देती है, उसको डेवलपमेंट को ध्यान में रखती है। किस ऑर्गेनाइजेशन इसको हेल्प करेगी, वो ऑर्गेनाइज रहेगी आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। इसको पावर ग्रिड कह दीजिए या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हेल्प करेगी अफ्रीका 50 की टू डेवलप अफ्रीकाज फर्स्ट ट्रिपल P ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन कीनिया। ट्रिपल P क्या होता है, फुल फॉर्म वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एंड 10th चेयरमैन बने हैं ये इसरो के। 10th चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है, S सोमनाथ, और ये रिप्लेस करेंगे के सिवान को। के सिवान कौन थे, 9 चेयरमैन थे इसरो के। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। डू कमेंट बिलो अगर आपको सेशन पसंद आया या आप चाहते हैं ऐसे और सेशन आते रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।